तो क्या इसी को सहयोग कहा जाना चाहिए? इसको ही सहयोग कहा जाना चाहिए। अपने लाइफ के लिए 2-3% विचार जरूरी है, बाकी के 95-97 विचार यूजलेस है, जिसका अपने को कुछ फायदा नहीं है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਡੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੰਜਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀटेशन सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ टीचर लोग ने उन्होंने नाल मिल के ਤੁਹਾਨੂੰ वो टिप्स दिला सकिए। तो इस समय हमारे साथ हैं प्रभा दीदी, यहाँ पे मेडिटेशन सिखाती हैं, योग सिखाती हैं और पिछले 20 साल से सहयोग जो है उसकी टेक्निक्स जो हैं वो खा रही हैं। ये सहयोग एक तरह से वही योग है, उसी का नाम है कि हम निर्विचार हो जाएं। कि निर्विचार होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कि सहयोग ध्यान में हम परमात्मा की शक्ति से जुड़ते हैं और हमारी ये शक्ति कुंडलिनी जागृत जब हो जाती है तो सबसे पहला हमको ये संतुलन देती है। संतुलन मतलब ना भूतकाल के विचार ना भविष्य काल के विचार, जहाँ पर हम वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान का आनंद पूरा उठाते हैं। तो जब ऑटोमेटिकली हमारी कुंडलिनी उठती है तो ये हमको विचारों से मुक्त करती है और हमको पूरे समय आनंद की स्थिति में रखती है, संतुलन की स्थिति में। फिर चाहे आप घर का काम करें, चाहे स्कूल में पढ़ते हो, चाहे ऑफिस के काम करो, किसी भी काम में आप देखते हैं कि आपका आउटपुट बहुत अच्छा रहता है। धर्मशाला में जितने भी पर्यटक आते हैं देश से विदेशों से, तो वो सारे इस सेंटर में जरूर एक बार विजिट करते हैं। यहाँ कितने देशों से लोग आ रहे हैं, कौन से लोग आते हैं, उनकी जिज्ञासा क्या होती है, फिर वो कितना सीखने के बाद कितना जुड़ा रह जाते हैं। धर्मशाला वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। तो हमारे यहाँ कई सारे टूरिस्ट दिन भर में यहाँ आते हैं, देश विदेश से आते हैं, हर वर्ग से लोग यहाँ आते हैं और हर देश से आते हैं। तो हम उनको पूरी जानकारी देते हैं और आगे हमारी अलग टीम है जो उनको कांटेक्ट करके उनको सहयोग के बारे में और डिटेल्स देती है और हम यहाँ उनको थोड़ा सा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज खुद देते हैं और इजी वे में समझाते हैं और उनको बुकलेट देते हैं जिससे वो आगे की गाइडेंस ले सके। सेंटर के एड्रेस देते हैं जहाँ वो रहते हैं ताकि वो और मार्गदर्शन पा सके। सहयोग का एक तो ये केंद्र है, मैं कहूँगा कि ये मुख्यालय है। तो इस तरह के और कितने केंद्र हैं? किस जगह पे किसी ने सहयोग सीखना हो, क्या उसको धर्मशाला ही आना पड़ेगा, नड्डी ही आना पड़ेगा, या फिर दूसरे शहरों में भी इस तरह के केंद्र हैं? कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ध्यान के सहयोग ध्यान केंद्र हर जगह है। आप जिधर भी जाओ आपको सहयोग ध्यान केंद्र मिल जाएगा। देश विदेश में कई सारे देशों में करीबन 160 देशों में सहयोग ध्यान किया जा रहा है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और उस कंट्री की भी जानकारी सहयोग मेडिटेशन सेंटर की ले सकते हैं।
और इंडिया में तो सभी जगह है ऑलमोस्ट। हमारे साथ इस समय है दशरथ भोंसले जी कि जब हम्म, हम मेडिटेशन में चले जाते हैं हम्म, और सहयोग करते हैं हम्म, तो उसमें जाने का एक लाभ ये भी होता है कि हम हम्म, निरोगी रहते हैं, यस, शारीरिक वेरी तौर पे भी बराबर, और मानसिक तौर पे मानसिक भी। तौर पर भी। तो ये कैसे संभव है कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे शरीर की दूसरी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? कैसा रहता है कि हम सुबह से शाम तक खाली सोचते रहते हैं। सुबह हमारा सोचने का अलग तरीका रहता है, दोपहर का अलग रहता है, शाम का अलग रहता है। और इतना ही नहीं, कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि कभी हमारी पूरी जो सिस्टम है पूरी कोलैप्स हो जाती है। जैसा कि चलो भाई हम मुझे जल्दी जाना है, जल्दी प्लेन छूट जा रहा है, ऐसा कर रहा है, और हमारे ऊपर हम ही हमारे सिस्टम डिकंट्रोल कर देते। तो उसी किसी न किसी डिसीज से वो बाहर निकलने की कोशिश करें, चाहे वो जॉन्डिस रहने दो, कैंसर की रहने दो, या कोई और भी कारण रहते हैं डिसीज के, तो उसके थ्रू वो बाहर निकलने के लिए तो हम वो क्या कर लेते हैं, सीधा वो उसको बीमारी को आमंत्रण देते हैं विचारों से ही। अगर विचारों से बाहर निकल जाते हैं हाँ। और अपने अंतःकरण को निर्विचार कर लेते हैं तो हम समझ लीजिए कि एक सही ट्रैक पे आ गए। तो क्या इसी को सहयोग कहा जाना चाहिए? इसको ही सहयोग कहा जाना चाहिए। अपने लाइफ के लिए 2-3% विचार जरूरी है, बाकी के 95-97 विचार यूजलेस है, जिसका अपने को कुछ फायदा नहीं है। देखो, हम हर चीज पे हमारा चित्त जाता है, हमारे आंखें हर चीज पे जाती है। जैसा कि कागज का टुकड़ा आदमी मिला तो ऊंचा है या ठेंगना है, गोरा है या काला है, हर एक चीज पे हम एनालिसिस करते। ये जो भी विचार दिन भर के रहने, उसका हमने को कुछ फायदा नहीं, अपने लाइफ को भी कुछ फायदा नहीं है। अपने लाइफ के लिए खाली 2-3% विचार जरूरी, बाकी के विचार यूजलेस है, कुछ फायदा नहीं, लेकिन उसकी नुकसान बहुत हमको करा है। हमारा शरीर पूरा विचारों से खोखला हो रहा है। तो फूड सोकिंग बेसिकली क्या है? फूड सोकिंग बेसिकली ये है कि जैसा हम हर दिन नहाते हैं, तो हम क्यों नहाते हैं कि शरीर के ऊपर की जो गंदगी है स्किन की वो निकल जाए या नहीं रहना। ये फूड सोकिंग है कि अंदर अपनी गंदगी कितनी है अपने को पता नहीं है। ये फूड सोकिंग क्या करती है कि अंदर की गंदगी पूरी निकाल देती है फूड सोकिंग थ्रू। ये 3 टब हैं हमारे पास और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तीनों में नॉर्मल पानी डाला हुआ है और ये जो साथ में मग पड़े हुए हैं ये भी नॉर्मल पानी के हैं। और ये नमक जो है ये वही नमक है जो हम पहले अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। इसको समुद्र का नमक बोलते हैं सर, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये 50 ग्राम नमक जो है इतना इसमें डाल लेना है और इसको डालने के बाद तो इस तरीके से 7 बार वाइब्रेशंस देना है पानी को, उसको ध्यान में रखते हुए कि ये पानी जो है हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उसको निकालने वाला है, उसको सोक करने वाला है। तो इसको फिर फुट सोकिंग इसीलिए कहते हैं। तो पहले ये लेफ्ट पांव रखा इसके बीच में और फिर राइट पांव इसके बीच में रखा कि पानी के अंदर नमक मिला के दोनों पांव को जो है वो बीच में रखना है और इस तरीके से हमें बैठना है। 6 से 7 मिनट जो पांव हैं वो इस पानी में डिप करके रखने होंगे हमें। तो जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद ये जो स्वच्छ पानी है उससे पहले लेफ्ट पांव ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੂਮ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸੀਅਤ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 2 ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਸੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਰਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਜ ਯੋਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮ।